तो बच्चों ये एक्चुअली में लॉज ऑफ रोटेशनल मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ रोटेशनल मोशन. तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ? According to first law, if any body free to rotate about any axis, then in the absence of external torque, if the body is free, if the body is in rest, remains continue in rest, and if the body rotates about any axis, then it continue rotates with constant angular velocity. This is Newton's first law of rotational motion. Next बच्चों second law. The rate of change of angular momentum is directly proportional to applied torque. That is tau is equal to dl by dt. And third law, every action has equal and opposite reaction torque. तो ये बच्चों 3 जो लॉज हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ रोटेशनल मोशन है, बिल्कुल सिमिलर है जैसे अपन ने वहां पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देखे थे लीनियर मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में. इसी तरीके से वो यहाँ भी इक्वेशंस ड्राइव करवाए जाते हैं, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, वो हम लोगों को देखना चाहिए. तो फर्स्ट इक्वेशन, लेट ओमेगा 0 इनिशियल angular velocity. What is omega t? Final angular velocity after time t. Alpha angular acceleration and theta angular displacement in time t. Then first equation of rotational motion. बच्चों what is alpha? d omega by dt. d omega is equal to alpha into dt. Integration of d omega, integration of alpha into of dt. What is d omega? Change in angular velocity from initial to final. That is omega 0 to omega t in time 0 to t. dt means change in time, na? 0 means initial time. Initial corresponding initial angular velocity, final time is corresponding final angular velocity. आप सबको पता है इंटीग्रेशन dx x, इंटीग्रेशन d ओमेगा ओमेगा, ओमेगा 0 ओमेगा t, अल्फा कांस्टेंट. जब आप रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन ऑफ dt from 0 to t. Omega t minus omega 0 is equal to alpha. Integration t from 0 to t. Omega t minus omega 0 is equal to alpha. T minus 0. पहले upper limit minus lower limit. Means omega t is equal to omega 0 plus alpha into t. This is what first equation for rotational motion. Second equation,
ओमेगा इज इक्वल टू d theta by dt. What is omega? Angular velocity, angular displacement upon time, और omega t is equal to d theta is equal to omega t into of dt. d theta is equal to, what is omega t? Omega 0 plus alpha into t by first equation. d theta is equal to omega 0 into dt plus omega 0, sorry, plus alpha into t into of dt by integration in both sides. d theta integration of omega 0 into dt plus integration alpha into t into of t. Limits from 0 to theta. तो यह वेरिएबल थीटा है ना, यहाँ वेरिएबल टाइम दिख रहा 0 to t, 0 to t. इंटीग्रेशन d थीटा, थीटा 0 to theta. Omega 0 constant integration of dt from 0 to t plus alpha constant common integration t into of dt from 0 to t. Theta minus 0, omega 0, integration dt t from 0 to t plus alpha integration t to the power 1, t to the power 1 plus 1 upon 1 plus 1 from 0 to t. बच्चों इंटीग्रेशन x to the power n, x to the power n plus 1 upon n plus 1. तो यहाँ n 1 है ना, तो इंटीग्रेशन t to the power 1 plus 1 upon 1 plus 1. This is theta omega 0 t minus 0 plus half alpha t square minus 0 square. Theta is equal to omega 0 t plus half alpha into t square. तो ये हो गया बच्चों सेकंड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन मैं आपको ड्राइव करवाता हूं. मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया हूं ताकि आप वीडियो पॉज करके यदि आप चाहें तो नोट करना तो नोट कर सकते हैं. थर्ड इक्वेशन, ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा अपॉन dt. एंगुलर वेलोसिटी is equal to angular displacement upon time. Means omega is equal to d theta upon d omega into d omega by dt. d omega से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, फिर इस d omega को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो omega into d omega. यहाँ पर ये d theta है और d omega upon dt दिया जाएगा अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन. अब बाय इंटीग्रेशन ओमेगा डी ओमेगा इंटीग्रेशन अल्फा इंटू डी थीटा. यहां पर वेरिएबल है ओमेगा, तो ओमेगा 0 से लेके ओमेगा टी. यहां वेरिएबल है थीटा, तो इनिशियल पर 0 और फाइनल पर थीटा. इनिशियली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 और फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. तो ये ओमेगा टू द पावर 1 है, ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ओमेगा 0 ओमेगा टी. ये जाएगा अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा.
फिर यहाँ पर जाएगा ओमेगा टी स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू अल्फा थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा। इंटीग्रेशन dx होता है x, इंटीग्रेशन d थीटा जाएगा थीटा। यहाँ पर एलसीएम 2 जाएगा ओमेगा टी स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू अल्फा थीटा माइनस 0। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, कुल मिलाकर ओमेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 इनटू अल्फा इनटू थीटा। जैसे वहां था ना v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और v फाइनल वेलोसिटी थी, यहाँ पर ओमेगा टी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, u था वहां पर इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, वहां a एक्सेलरेशन, यहाँ पर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हो गया बच्चों थर्ड इक्वेशन। एंड फोर्थ ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा अपॉन dt अगेन। अब angular displacement in the particular nth second, जैसे वहां था ना distance traveled in the nth second, वैसे यहाँ पर angular displacement। तो इस कंडीशन में ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय dt। जो थर्ड इक्वेशन है वो आपने ओमेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इनटू थीटा। ये जो फोर्थ लिखा है मैंने, इसमें हम लोग फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड, किसी पर्टिकुलर टाइम में। जैसे हमने वहां इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा था ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द nth सेकंड। कोई बॉडी मोशन कर रही है और पर्टिकुलर 4th सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, या पर्टिकुलर 7 सेकंड में कितना किया, पर्टिकुलर 12 सेकंड में कितना किया, तो उसका फॉर्मूला क्या था, s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2 इनटू 2n माइनस 1। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर जब कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो किसी पर्टिकुलर टाइम में उसका कितना रोटेशन, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, वो हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन dt, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा इनटू dt इज इक्वल टू डी थीटा, मतलब डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू dt। यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया डी थीटा, वहां पर इंटीग्रेशन राइट साइड में ओमेगा 0 प्लस अल्फा इनटू t dt। लेफ्ट हैंड साइड पर जो वेरिएबल है वो है थीटा। तो हमको यदि मान लीजिए कोई बॉडी मोशन कर रही है और यदि 9 सेकंड में मान लीजिए वो 30 डिग्री रोटेट हुई है और पूरे 10 सेकंड में 45 डिग्री हुई है, तो पर्टिकुलर 10th सेकंड में उसका रोटेशन कितना हुआ, तो नो डाउट आप बोलेंगे 45 माइनस 30 मतलब 15 डिग्री। तो ऐसा ही यहाँ पर अपन लेंगे, तो यहाँ पर राइट साइड पर टाइम n-1 to n लेंगे, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग लिमिट्स लेंगे थीटा n-1 to थीटा n। फिर इंटीग्रेशन डी थीटा क्या होता है बच्चों, थीटा लोअर लिमिट हो जाएगी थीटा n-1, अपर लिमिट हो जाएगी थीटा n। राइट हैंड साइड पर इंटीग्रेशन f1 प्लस f2 लिखा हुआ है, तो हमको मालूम है इंटीग्रेशन f1 प्लस f2 क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2। तो हमने इंटीग्रेशन ओमेगा 0 इनटू dt किया प्लस इंटीग्रेशन अल्फा इनटू t इनटू dt, और बाकी फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी फ्रॉम n-1 टू n। अब लेफ्ट हैंड साइड पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब थीटा n माइनस थीटा n माइनस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर ओमेगा 0 इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम n-1 टू n प्लस अल्फा कांस्टेंट है, कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन t इनटू dt फ्रॉम n-1 टू n। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखा हुआ है, थीटा nth, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन ए पर्टिकुलर टाइम nth सेकंड इज इक्वल टू ओमेगा 0 इंटीग्रेशन dt जाएगा t फ्रॉम n-1 टू n प्लस अल्फा। इंटीग्रेशन t क्या होता है बच्चों, t स्क्वायर बाय 2,
फ्रॉम n माइनस 1 टू n, थीटा nth इज इक्वल टू ओमेगा 0, t की जगह पर n माइनस 1 प्लस अल्फा बाय 2, 2 यहाँ पर राइट हैंड साइड पर 2 जो है वो बाहर निकल आएगा तो अल्फा बाय 2, t स्क्वायर की जगह n स्क्वायर माइनस फिर t की जगह n माइनस 1 स्क्वायर, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब नेक्स्ट मैं देखता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने देखा थीटा nth इज इक्वल टू ओमेगा 0, यहाँ बच्चों n ब्रैकेट ओपन करोगे तो n माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, तो n n कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 बचेगा, तो 1 इंटू ओमेगा 0 जाएगा प्लस अल्फा बाय 2 इंटू n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं आप लोग इस टाइप थीटा nth इज इक्वल टू ओमेगा 0 इंटू 1 प्लस अल्फा बाय 2, फिर बच्चों ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b, तो इसलिए ये लिखा है n माइनस 1 इंटू n प्लस n माइनस 1, यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो n कैंसिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बाय 2 रहेगा और ये 2n प्लस 2n माइनस 1, तो जैसा वहां पर फॉर्मूला था बिल्कुल वैसा फॉर्मूला जाएगा जैसा वहां पर ने देखा था s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2 into 2n माइनस 1, वैसे यहाँ थीटा nth इज इक्वल टू जाएगा ओमेगा 0 प्लस अल्फा बाय 2 into 2n माइनस 1।